are with the big story here. I'm Seher Zama. The top focus here is regarding the violence that has been seen in JNU and the fallout of it today. This is with respect to the police now. The crime branch has decided to probe to investigate the violence that broke out in the JNU campus on Sunday. This was Sunday evening when masked goons with sticks and stones entered the JNU campus, vandalized hostels, attacked students, attacked faculty members as well. At least 34 people were injured during the clashes. All of them now have been discharged with minor injuries. Meanwhile, it is a blame game that has erupted, with the left as well as the right-wing students blaming each other for the violence. The investigations to this are still on, but according to the JNU administration, saying that anti-registration groups to the admission process are responsible for this violence. JNU में कल जो वायलेंस हुआ है उसको संज्ञान में लेते हुए हमने पुलिस स्टेशन वसंत कुंज नॉर्थ में ऑलरेडी एक एफआईआर दर्ज कर लिया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। घायल तकरीबन 30 से ज़्यादा संख्या है स्टूडेंट्स की जो घायल हुए हैं। प्रिलिमिनरी किसी को बहुत सीरियस इंजरीज नहीं है। मोर देन 60% जो हैं वो डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और इस चीज़ को हम फर्दर देख रहे हैं। Dramatic videos of Sunday's violence late last evening inside JNU campus that have surfaced, that are doing the rounds on social media. But on the exact details, on the sequence of events of what led to this horrifying violence, when you had masked armed goons enter campus, attack students as well as attack faculty members. Let's get in a word here from our news editor Avni Raja, getting us those inputs here. Avni, please go ahead. Explain to us through the sequence of events, what were the nature of protests which were on against the registration process to the winter session, following which this horrifying violence that took place in campus then? That's right, Sahir. Like you pointed out, there's been a whole host of videos that have been doing the rounds that really show the extent of damage, that show these masked goons really coming into campus and, targeting various students and vandalizing property. In fact, so I just want to take you through some of the videos that have come. First off, on the 5th of Jan, between 4 and 6 p.m., there was a whole lot of ruckus on campus. Then later in the evening, you can see this entire whole group of masked people who entered the campus and you can see them with sticks in their hands. Their faces are completely covered, so they're not able to identify them at all. Inside the hostel, there were students who were targeted. They were seen screaming and heard screaming, shouting. Entire hostels were vandalized. 3 different hostels were in fact vandalized last evening. And this particular video, I just want to point out here, this is a video that was released by the ABVP. Essentially, they claim that the JNU Students' Union... Stay on with us, because this is now a blame game between the left and the right-wing students affiliated organization. The ABVP is now speaking here on what they think about last night's violence. तो ये वामपंथियों का आखिरी जो गढ़ ये लोग JNU को बोलते हैं, पूरी प्लान्ड तरीके से मरीज से पहुंचने से पहले, मतलब खुद को मार के पहुंचने से पहले इनके आका वहाँ लोग पहुंच जाते हैं। इस प्लांट सिचुएशन को, इस मीडिया को एक सही डायरेक्शन में जाकर एक इक्वल चीज़ बताने की ज़रूरत है और ये लोग लगे हैं तो ये सच में लगी है, आप देख सकते हैं। ये बताइए, वीडियो वायरल हो रहा है। वो एकदम सही मूव है, उसमें आयशी घोषी उसको लीड कर रही है। ऐसा 2 दिन पहले आप देखेंगे तो गीता कुमारी उसको लीड कर रही थी, उसके बाहर CIS के बाहर उसका भी फोटो, इस तरह बहुत सारे फोटोज आप देख सकते हैं। बहुत सारे फोटोज हैं, मॉब लगा के, वो मॉब में यही लोग हैं। अपेक्षा प्रियदर्शी है इनकी, उसके बाद से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मॉब में कल हमें दौड़ाए हैं और उनको बोला मॉब क्यों है, बोले कि हम क्या नाम शक्ल नहीं दिखाएंगे अपना, कोर्ट में तुम लोग प्रूफ नहीं करेंगे। साबरमती हॉस्टल में कई सारे रूम ऐसे हैं जहाँ पर ABVP के स्टिकर लगे हैं, वो सेफ है, सामने वाले तोड़ दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कई सारे लोग वहाँ पर ऐसे, जब वहाँ पर गए थे हम, तो जहाँ पर दूसरी पार्टी के स्टिकर लगे हैं अलग अलग, वो तोड़ दिए गए। आप देखिए के लगे पेरियार और मैं अभी तक कैंपस के अंदर नहीं गया हूं। कावेरी में आप जाएंगे तो कावेरी में मेरा हॉस्टल है, मैंने टारगेट करके और रूम तोड़े गए। 60% काम करके अपने लैपटॉप में रखा था। 2 लैपटॉप थे, दोनों लैपटॉप को तहस नहस कर दिया। कौन लिखेगा मेरे PhD?
आपकी लैपटॉप को हाँ, जो मॉब हॉस्टल घुसा था, सतीश चंद्र यादव थे, आयशी घोष थी, गीता कुमारी थी, दोलन थी, और उसके बाद से कासिम था, अपेक्षा प्रियदर्शी थी, अंकित था। बाहर से भी लड़के आए थे कि यही JNU वाले? जामिया से बहुत लोग आए थे। अब जामिया के व्हाट्सएप ग्रुप में भी चल रहा है, ये मुंह छुपाए हुए लोग थे। ये ऐसा नहीं है कि प्री प्लान्ड था, 2 दिन से ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। एक स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है। कोई भी नहीं है ABVP DU का मेंबर यहाँ पे। वहाँ के व्हाट्सएप में सर्कुलेशन हो रहा है, वहाँ से कुछ लोग हमें बताते हैं कि 400-500 लोग JNU आ रहे हैं। उस समय में हम लोग उनके एंट्री की व्यवस्था, उस समय में हम लोग इस कैंपस से कैसे निकल के भागे हैं। अंदर नरसंहार चल रहा है। कल एक बार लाठीचार्ज नहीं हुआ है, एक बार मोब नहीं भागी है, 3-3 बार, 4-4, 5-5 हॉस्टल में मारा गया है। लाइट बंद की जाती। ABVP के जो लोग हैं, सुबह जब रात भर पुलिस की मदद से या गार्ड की मदद से उनको ढूंढा गया तो सब घायल जंगलों में पाए गए। अदर्स कॉमन स्टूडेंट भी रिलेट किया। सतीश चंद्र यादव ने मुझ पे हमला किया है। 4 बजे जब पेरियार हॉस्टल में था तो हमारे उस रूम के बाहर एक स्टिकर लगा था, उन्होंने दोनों तरफ से उसको तोड़ा, दरवाजे को तोड़ने के बाद हम भागने की कोशिश करें तो दूसरे विंग में ले जाके मुझे मारा। ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। ऐसे ग्रुप में मैं कब ऐड हुआ हूँ, उससे पहले मेरा फोन टूट चुका था। ऐसे ग्रुप ABVP का नहीं है। ABVP के छात्र ऐसे वॉयलेंस में नहीं बात करते हैं। तो उसको आप कंडेम करते हैं? जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, उस ग्रुप में एक मैसेज किया गया पूरे वो ग्रुप कम्युनिस्टों ने बनाया और उसका एडमिन हम लोगों को बना दिया। अभी तो मैंने किसी मैसेज को सीन नहीं किया है उस ग्रुप में। ऐसा उसको किसी न्यूज चैनल ने आइडेंटिफाई भी किया है। मेरे पास फोन आया था अभी थोड़ी आधे घंटे पहले कि उस ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन किया उन लोग। 8 लोग ABVP के हैं, एक DU की प्रोफेसर भी हैं जो ABVP से जुड़े रही है। उसमें NSUI है, उसमें आईसा, SFI सब हैं। पहले जोड़ के हमें हमारा नंबर जोड़ के उसमें बना दिया गया, लिंक से उसमें रिसीव किया है। यानी कि ये पहले का वो मैसेजेस दिखा दें उस ग्रुप का एक दिन। अगर यही बात है तो कल ही कैसे उस ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं? कम से कम इस मीडिया को सच्चाई बताने की जरूरत है। जो बातें आप कह रहे हैं यही बातें दूसरे वर्जन से आपको लेकर आ रही है। आपको वीडियोस देखना चाहिए। मोब को कौन लीड कर रहा है? आयशी घोष कर रही है। आपको मोब आप देखिए ना, चोट किसको लगी देख लीजिए ना, चोट किसको लगी, मारा गया है, प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? सिर में देख ताके देख लीजिए, ताके मारना शुरू करेंगे। किस तरह से गले पे मारा गया देख लीजिए, रॉड का निशान। ये रूम में सोए हुए रूम में इसको मारा है। रॉड ब्लैक करके मनीष भाई एक मिनट इनके हाथ में आप लोग समझ लीजिए, ये लोग यही चाहते हैं इस कैंपस में इनका अथॉरिटी रूल है, इनकी हेजीमनी के अंडर आप लोग रहेंगे तभी ये मानेंगे, अदरवाइज आपको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। एक फोटो करना है। उज्जवल कहाँ है, उसको बुलाओ ना, फोन करो उसको जरा। आप आओ ना, मैं बातचीत से पहले विजुअल बनाने को पहले क्या चाहिए आप? क्या हो रहा है? अरे तो हम भी तो क्वेश्चन बताइए एक सेकंड चलो लगाओ। ABVP की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जब रजिस्टर करने जाता हूं, मुझे आपकी तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं रजिस्टर करने जाते हैं तो उनके जो फॉर्म से उसको फाड़ दे लगाए। नहीं हम आपको आरोप नहीं लगा रहे हैं, फैक्ट्स असॉल्ट करने के। All right, this is of course with respect to the ABVP on their version of the violence and who are the perpetrators of this violence. But it's important to note this is a case which is being investigated by the crime branch of the Delhi police, and it is for the Delhi police to ascertain who caused the violence. Let's go across to our correspondent Gurpreet in Chandigarh. Remember, the fallout of this horrifying violence inside the JNU campus has led to multiple protests across the country by young students standing in solidarity with the students of JNU. We have with us our Deputy News Editor Mayuresh. We also have with us our correspondent Gurpreet from Chandigarh. First to you, Gurpreet, the ongoing protest which is on by students here in Chandigarh, what exactly is their view? They're saying of this violence that has taken place in JNU.
Well, let me tell you that we are reporting from Punjab University of Chandigarh, and this is the student center where since morning the protest is going on, and even the students, they are showing their solidarity, and we can also see that a heavy force have been deployed here because initially that ABVP students, they were holding a protest, and after that SFS, that another organization, they have come here, so they want to maintain law and order situation here, and they were worried about law and order situation because the venue was the same for both the organization. But the protest is going on. These students, they are showing their solidarity with the JNU. They condemned, criticized the way the violence has taken place. They say that tomorrow it can be Punjab University. That's why they are holding protest here. Some of the student activists they are with us. So we will try to talk. So why are you holding this protest? What are your basic demand? सर हमारी 3 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि कल जो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस था उसमें लोग बहुत हद तक आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ग्रुप में पता चल रहे हैं, तो एबीवीपी के और आरएसएस के वो उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, पुलिस ने नॉर्मल स्टूडेंट्स के कहने पे भी जो है कॉल नहीं उठाया, तो ये इस देश में हमारी सुरक्षा सर पुलिस के ही हाथ में होती है। पर ये आपसे पहले It identifies 6 religious groups, and the Act says if a person is from one of the 3 countries and professes one of the 6 religions, even if he had entered India illegally before the cutoff date, he would not be considered an illegal migrant and he would be granted citizenship in India. That's what the Act says. Now, a number of questions have been raised. Had briefly pressed into the Congress briefing with respect to once again as far as the Citizenship Amendments Act is concerned there, but we're keeping our focus back as far as the violence that has taken place in JNU campus. Investigations by the police are still on, irrespective of various versions of either left-leaning or right-leaning students on who caused this violence, who are these masked perpetrators. It is for the crime branch of the police to ascertain that with those ongoing investigations. We have with us our Deputy News Editor Mayuresh getting us further inputs here. Mayuresh, we have seen how the violence, the videos of this horrifying violence that played across our social media timelines here, which led to multiple spontaneous protests right from last night, midnight onwards here, that have continued through the day today as well. The point at where you're standing, all the students involved in this ongoing protest here in solidarity with the JNU, what are they saying today? Certainly, this is one of the protests, the spontaneous protests, which is happening since yesterday midnight, where students did a candlelight vigil, and since then they have not moved on from this place. They are here at the Gateway of India. There was another protest which was lined up at 4 p.m. today, but that has been cancelled, and they have asked all people to gather at the Gateway of India. You can see most of them are students. They are from different universities, they are from different institutions, and there was a call which was given on the social media to gather at Gateway of India for the midnight candlelight vigil, and after that the students have started gathering over here. In the morning when we came here, there were only 100 to 110 students were there, but now you can see that every hour the student count is increasing, and all the students from Mumbai and nearby areas, they are coming here in solidarity to show their solidarity with the JNU students. Back to you. Right. Okay, Mayuresh, please stay on with us. I'm also getting in further inputs here from our correspondent Alok, who of course through this morning, all of last evening as well, has been getting in those inputs as far as the condition, the circumstance today inside campus here is concerned. Alok, you have been getting in a word from several of those who've been affected by the violence, by those students in those hostels as well, the 3 hostels that were attacked. What is the situation this afternoon?
Well, yes, Seher. In fact, I am standing in one of those hostels, that is Periyar Hostel, and this is the hostel where right now I'm standing. You can see my camera person can pan you, and there you can see there are rooms. In fact, in several rooms that the vandalism had happened yesterday. In fact, these are students who are standing. Let's go inside and talk to them also. Let's show you some visuals from inside as well. This is the mess where, as of now, the situation is fine, and their students are students. I am the president in this hostel. So let's talk to the president as well. That he's president, and in fact let's talk to him. यहाँ पर president जो है हर hostel के अलग-अलग होते हैं. हाँ जी, हाँ. अच्छा. तो आप जैसे प्रेसिडेंट हैं और कल आप होंगे यहाँ पर जब सारी चीज़ घटना हुई थी, क्या हुआ था थोड़ा सा सीक्वेंस में, क्योंकि ये एक फ्लैश पॉइंट था सर. ऐसा बताया जाता है कि सबसे पहले पेरियार हॉस्टल से ही चीज़ें शुरू हुई. जो फ्लैश आया, जो मॉब का जो लोग थे मुंह में कपड़ा लगाए हुए, वो लोग यहाँ से स्टार्ट हुए और फिर उसके बाद वो कई जगह पर गए. क्या हुआ था थोड़ा? देखिए, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 3:30 पौने 4 के आसपास 100, 120, 130 लोग मुंह पे कपड़ा अपड़ा बांध के आ गए और गार्ड के साथ ज़बरदस्ती धक्का मुक्की करके गेट तोड़ के आ गए वो लोग. उन्होंने क्या किया, सीधा मैस में घुसे, मैस को वैंडलिज्म किया. हमारा जो डिनर प्रिपेयर रखा था उसके साथ कुछ छिड़खानी की, जो कि फूड फिर सर्व करने लायक नहीं बचा था. पेरियार, गोदावरी, कावेरी, ये सिर्फ 3 हॉस्टल ऐसे हैं JNU में जिनमें सारे PH स्टूडेंट्स, फिजिकली हैंडीकैप्ड और विजुअली हैंडीकैप्ड जितने भी लोग हैं, वो सारे जितने भी लोग हैं सब इन्हीं हॉस्टल्स में रहते हैं. उसका रीज़न है कि ये सारे स्कूल एरिया से, स्पोर्ट्स ग्राउंड से, बस स्टैंड से, बैंक से, होटल से सबसे पास में पड़ता है ये. तो वो लोग भी थे यहाँ पे. तो जब वो लोग ऐसे घुस के आए तो ऐसे रूम में घुसने लगे, जब सबके पास जो भी रॉड था, डंडा लाठी जो भी था सब, तो ऐसे एक दूसरे रूम को टारगेट करके मारने लगे. तो ऐसा क्या था, जैसे बेसिकली जितने PH लोग हैं ना, ग्राउंड फ्लोर सबके लिए होता है, ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादातर लोग रहते हैं. तो जब वो किसी को मार रहे थे ना, तो जैसे आपके बगल में कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, उसको दिखाई नहीं देता. अब उसके बगल में 120 लोग किसी बच्चे को मार रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा, तो उसको वो चीख की आवाज़ आ रही है. तो वो लोग, उनका मुझे परमिशन नहीं है, नहीं मैं जो उनको जो मैसेजेस हैं जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेजेस किए हैं, मैं आपको अगर सुनाऊंगा तो आप रोने लगेंगे लिटरली, क्योंकि वो जो दर्द था ना उनकी आवाज़ में, वो उस वक्त मैं फील कर पा रहा था, क्योंकि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था. आपके पास मैसेज भेज रहे थे वो मेरे पास भेज रहे थे, सुशील भैया के पास भेज रहे थे. वो कर क्या सकते हैं बेचारे, क्योंकि उनको कुछ दिख नहीं रहा था. तो ऐसे मुझे कॉल कर रहे हैं. तो मैंने पुलिस को कॉल किया, उसके बाद मैंने दोबारा पुलिस को कॉल किया. सबसे पहले कॉल कितने बजे किया? अराउंड 4:36. उसके बाद एक 5:17 के आसपास की थी. मैंने पुलिस से कहा, भाई कहाँ हो, जल्दी आओ, मर जाओगे यार, तभी बचाएंगे क्या, आप जब मर जाएंगे तभी आओगे क्या. तो उसके बाद बोलो, सर हम लोग भेज रहे हैं. तो ऐसे लोग आए तो हम लोग तो रूम में ही फंस गए थे, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं. तो पुलिस लगभग कितने बजे करीब आई है पूरे? कमरे में बंद थे, हमको नहीं पता, लेकिन हमको लगता है कि 6 बजे के आसपास ही आई होगी. आप कितने बजे निकल पाए? क्या आप लोग कितने बजे निकल पाए? बेसिकली हमारे कैंपस में नेटवर्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और कल वाईफाई भी बंद था, तो कुछ कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पा रहा था. तो धीरे से, मतलब जब वो लोग 6, 6:15 के आसपास निकले हैं यहाँ से, मतलब ऐसा बेसिकली कभी भी वैंडलिज्म के जो लोग आए थे वो कभी भी निकले होंगे, मतलब, लेकिन ऐसा हमको लगा. तो उस वक्त हम बाहर निकले हैं, तो हम देखा है थोड़ा सा क्लियर है, तो भागते भागते सीनियर्स के रूम में गए, भैया क्या हुआ, देखा सीनियर्स को भी मारा है. हॉस्टल रूम्स यहाँ पर वैंडलाइज्ड हुए हैं. मैं आपको एक बार दिखा भी चुका हूँ शायद तक. नहीं, अगर एक बार आप हमें दिखा सकते. नहीं, एक बार काफ़ी है. बेसिकली अभी परमिशन नहीं आ रहा है, और सिंस आई एम द प्रेसिडेंट इट्स माई ड्यूटी टू फॉलो द रूल्स. अभी क्या है कि काफ़ी रूम्स यहाँ पे वैंडलाइज हुए, मतलब 15, 18, 20, 25, 30 के आसपास, तो आप मान ही लीजिए. ठीक है. इसके शीशे तोड़े गए, लोग बच्चों को मारा भी गया अंदर. नहीं, देखिए ऐसा है, शीशे तोड़ना वो डिफरेंट है. बेसिकली वो मॉब था. मॉब में आप लोगों ने हमेशा, हम लोग यही कहते हैं कि मॉब के पास दिमाग नहीं होता है, दिल होता है. पर ये जो मॉब थी, ऑर्गेनाइज्ड मॉब थी. इन्होंने मारा भी है, सही से मारा है, और बाकायदा देख के मारा है, किस रूम में जाना है, किसको तोड़ना है, किसको क्या तोड़ना है, सब बाकायदा सही से. जैसे कि आप रूम नंबर 6 में जाइए, वो खाली था, लेकिन रूम नंबर 5 को बहुत बुरी तरीके से उसको तोड़ा गया था. उसका कांच मांच तोड़ के उसके अंदर घुसे, उनका इलेक्ट्रिक केटल और जो भी कुछ उनका सामान था, पर्सनल सामान के साथ तोड़ फोड़ करके, फिर उन अंदर वाले रास्ते से रूम नंबर 7 में घुस के, रूम नंबर 7 में 3-4 लोग प्रेजेंट थे, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा. उसके बाद फिर वो लोग ऊपर जाते हैं, रूम नंबर 118, 119 को तोड़ ताड़ के बिल्कुल सही से, उनमें जो रेसिडेंट थे उनको निकाल के मारते हैं. उसका रूम नंबर 210 या 301 में जाते हैं. ऐसे मतलब उन्होंने काफ़ी रूम्स में जाके सबको आइडेंटिफाई किया हुआ था कि किस किस रूम्स में जाना है. इस तरीके से चीज़ें हमें हाँ, ये चीज़ें समझ में मुझे भी ऐसा ही लगा कि वो जो मॉब आया था वो ऑर्गेनाइज्ड मॉब था. उनके पास काफ़ी, सबने अपना मुंह बांध के रखा था. और मैं आपको बता दूं कि मेरा चौथा
हुई थी कैंपस में, ये मेरा चौथा साल है कैंपस में, लेकिन मैंने अब तक मतलब यहाँ पे हर सब कुछ देखा था। लड़ाई झगड़ा तो कॉमन है, लड़कों के बीच हो जाता है, लड़कों स्टूडेंट्स के बीच हो जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये जो मुंह बांध के आना, पत्थर फेंकना, ये अभी पिछले कुछ दिनों में दिखाई दे रहा है। हम लोग मतलब पेरियार पे से पहले पिछले साल भी अटैक हुआ था आफ्टर इलेक्शन। हमारे जो सुशील भैया थे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको पोलियो है एक पैर में। उनका तो एक उनका जूनियर था, ऐसा फोन छीन के उनको यहाँ मार दिया था, उनको तो ब्लड क्लॉट हो गया था। What is the condition at these hostels? Are students still staying here? Some of them, such as him who's speaking with us, or are students now moving out? Because there is one senior hostel warden from another hostel who has also resigned. Are students still staying in hostels, or are they moving out because of fear? There is a sense of uncertainty there. Yeah, definitely, Seher. In fact, we'll ask from him only. कितने students छोड़ के गए कुछ, क्योंकि sense of डर भी है वो लोगों के बच्चों के अंदर। पेरियार बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। पेरियार के स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखेंगे, डेटा देखेंगे तो 110 से 120 के आसपास न्यू स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर में आए हैं, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर हो, एमए फर्स्ट ईयर हो या एमफिल पीएचडी फर्स्ट ईयर हो। तो उसमें 120 के आसपास स्टूडेंट नए हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। 40-50 के आसपास पीएचबीएच हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो इनमें से ऑलमोस्ट लोग मतलब ऑलमोस्ट क्या 300 के आसपास लोग यहाँ से खाली कर चुका है। 40-50 लोग होगा इस पूरे जी, अभी है जो 40-50 लोग, यानी कि 350 में से केवल 300 लोग जा चुके, 40-50 के आसपास लोग जा चुका है। 300 के आसपास लोग जा चुका है। इवन कुछ लोग मुझे कल रात में मैसेज कर देते हैं, भैया इज इट सेफ टू कम इन द हॉस्टल। मैंने कहा ठीक है भाई आ जाओ, मैं देख लेता हूँ। अभी भी सुबह भी लोग मैसेज करके ही आ रहे हैं कि भैया आ जाए हॉस्टल में, कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप आ जाइए। Insecurity is prevailing here in the hostel, and not only this hostel, every hostel, in fact, all around in the campus, the students who are staying, they are in the fear, and that is why they are leaving, in fact. Back to you. All right, Alok, many thanks for getting us those details. Yeah, Alok, since morning, of course, has been speaking with several of those students there, also sending us across reports with respect to the extent of damage. But as we stated, there is a blame game from both sides. The ABVP has also spoken out in saying their members have also been injured in this violence. Let's take a listen in. यहाँ पर सर कल शाम को 4 बजे एक मॉब आई और वो शोर मचाती हुई निकल गई जी। 6:50 पे यहाँ पर मेरे दरवाजे को लॉक किया गया, जोर जोर से उस पर रॉड और लाठी के हमले से। फिर विंडो को तोड़ दिया गया। आप विंडो देख रहे होंगे सर, और वो सारा शीशा मेरे सर पे आके लगा। और उस समय मैं कैप लगाया हुआ था, इसलिए मेरा सर सुरक्षित रहा। और कुंडी टूट गई। फिर वो अंदर आके मुझे मारने लगे सरिये से। मैं कहता रहा कि मैं ब्लाइंड हूँ, मेरी सुरक्षा करो, मुझे छोड़ दो। तो कहते रहे ये झूठ बोल रहा है। उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। शराब में व्यक्ति हम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो अपना रजिस्ट्रेशन कराने का जो प्रोसेस था उसमें हम लोग आगे अपना काम कर रहे थे। और ये वामपंथी छात्रों ने जो एबीवीपी का जो प्रोटेस्ट था, हम लोग मांग कर रहे थे कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। वामपंथी छात्रों ने हमें रजिस्ट्रेशन कराने से भी मना किया। और साथ में ये लोग 200-300 के हुजूम के साथ हमारे हॉस्टल में आए और घुसकर एक रूम के शीशे को तोड़ा है, रूम का दरवाज़ा तोड़ दिया है और घुसकर लोगों को पीटा है। आज जब मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए JNU गई तो वहाँ पे कुछ लेफ्ट के लोगों ने मुझे रोक कर वहाँ पे पीटना शुरू किया, यहाँ तक कि गाली गलौज की, बदतमीज़ी की। और जब मुझे वहाँ से बचा के कुछ ABVP के लोगों ने जब मुझे लेके गए पेरियार, तो पेरियार में भी कम से कम 100-200 की भीड़ में वो लोग आके मास्क पहन के डंडे लेके कमरे के अंदर घुसे और घुस के उन्होंने मेरे और मेरे साथ जितने मेरे साथी थे उनको पीट के बाहर निकाला। और बाहर भी उन्होंने हमें डंडों से पीटा। मैं जिस कमरे में था उसको इतना बुरा मतलब लोहे की रोड से पत्थर फेंक के पूरा कमरा तोड़ दिया और मेरे हाथ में बहुत चोट आई है, पूरे बदन में चोट है। The JNU Vice Chancellor, Mr. M. Jagdish Kumar, has spoken out in a series of tweets promising to take action with these clashes having broken out at university campus. He's tweeted out saying hooliganism is against the ethos of the university. Those indulging in violence will not be spared and that appropriate action will be taken against them. The Vice Chancellor has alleged here intent of the protesters is to disrupt the functioning of the university, having appealed to all students to maintain peace on campus.
That's a wrap on the big story, but this continues to be the top focus through the day with multiple inputs on this that continue to come in. Impact, the fallout of this across other universities, students protesting across India in solidarity of JNU. We'll keep track of that. Stay on with us.